Good morning, students. Just tell me that am I audible to every one of you? Just check. Okay, students. In the last meeting, we had a bit disturbance from technical point of view. As we started reading the chapter, The Midnight Visitor, we completed first three paras basically. So let me just have a glance of a small summary type that what we completed first. We started with the chapter. The same things are there. We started this on 12th and now these points we have done the characters, possible secret agent, Fowler, writer, and Max, another secret agent. Now we were reading this text. We just completed first three paras. Let's just have a bit discussion. Possible is a secret agent. Possible is a secret agent. Close the door. And Fowler is a writer basically. So the writer, Fowler, comes to Possible with the permission basically to see the life of secret agent. And he envisioned something. He just thought something that how would be the secret agent. But he found completely opposite to that, completely different. Possible fat man, not good height, and the environment he was living in was totally different. Means कि स्पाई किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, हाउस देयर लाइफ, अब किस तरह से इमेजिन किया था फॉलर ने और उसको क्या मिला, ही वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड. पॉसिबल उसको बताता है कि तुमने इमेजिन किया होगा, इन्वेजन किया होगा मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, कि मिस्टीरियस चीजें देखने को मिलेंगी. The crack of the pistols, drugs in the wine, means you'll get the wine everywhere and the cracking of the pistols will be there. This was the last point. This was the last point we read. So let's continue with the fourth para, students. In the fourth para, what Possible says to Fowler, the writer, instead you have spent a dull evening. Instead means वो कहता है कि तुमने जो सोचा था उसके अलग से, उसके अलावा बेसिकली तुम्हें क्या देखने को मिलता है, क्या तुम्हें मिलता है. You have spent a dull evening. Dull evening means वो कहता है बिल्कुल सुस्त सी शाम जो है तुम्हें देखने को मिली in a French music hall with a sloopy fat man. Now you see with the sloopy fat man who instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call, making an appointment in his room. So let's see what happens. कि भाई अब वो कहता है कि तुम्हें एक सुस्त सी शाम बिताने को मिल रही है मेरे साथ फ्रेंच के एक म्यूजिक हॉल के अंदर with a sloopy, underline sloopy. Sloopy means careless, fat, careless, बिल्कुल लापरवाह मोटे आदमी के साथ, फैट मैन के साथ, who जो कि वो कहता है instead of having messages, जिसके पास messages slipped into his hand by dark-eyed beauties. You must have seen in the movies, और जो secret agents होते हैं जब वो hotels में जाते हैं, डार्क आइड ब्यूटीज मीन्स वो कहता है कि अच्छी अच्छी लड़कियां जो है गर्ल्स वहां पर आती हैं एंड दे हैंड ओवर द मैसेज. देखो मैसेज इज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड, और मैसेजेस जो है वो उसके हाथ में दे करके चुपचाप आगे निकल जाती है. दैट्स अ सीक्रेसी बेसिकली, राइट. सो सीक्रेट मैसेजेस आर गिवन टू द सीक्रेट एजेंट्स. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. इंस्टेड वो कहता है ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ दैट ही इज गेटिंग और नॉट गेटिंग, बेसिकली उसको ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है. गेट्स ओनली अ prosaic. Now you can see the next word is prosaic, students. Prosaic means ordinary, साधारण जिसको हम बोल सकते हैं, बिल्कुल साधारण सा. prosaic
अब वो कहता है प्रोसेक टेलीफोन कॉल, बिल्कुल एक सिंपल सी साधारण सी कॉल आती है, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, और उसमें जो है एक सीक्रेट एजेंट मीटिंग डिसाइड करता है अपने रूम के अंदर। बिल्कुल सिंपल, दैट्स अ बिट डिफरेंट। जो तुमने सोचा था उसके बिल्कुल अगेंस्ट अपोजिट हो रहा है सारे का सारा। यू हैव बीन बोर्ड, तुम अभी तक बोर हो चुके होगे बहुत ज्यादा। द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ। नाउ यू सी चकल्ड मीन्स मुंह दबा करके हंसना। द लाफ इन अ वेरी डिफरेंट वे टू मॉक समवन। अब वो जैसे ही चकल्ड करता है, हंसता है, एंड वाइल जस्ट लाफिंग एज ही और अनलॉक्ड द डोर, और अपने रूम की डोर को जो है अनलॉक करता है, ऑफिस रूम, एंड स्टूड असाइड, डोर को अनलॉक करके दरवाजे के दूसरी साइड खड़ा हो जाता है अनलॉक करके, टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, जिससे कि उसका जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है, द फाउलर बेसिकली, he was frustrated by now, right, by the situations or the scenario he saw with possible a secret agent basically, so he was frustrated, उसको वो कोट करता है फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट, ताकि वो पहले उससे आगे अंदर जा सके। Now you are disillusioned, possible told him, possible उसको बोलता है कि आप disillusioned हो। disillusioned means to realize that the belief he had is false, means उसने जो सीक्रेट एजेंट्स के बारे में सोचा था, इमेजिन किया था, वो सारे का सारा गलत साबित होता है, false साबित होता है। But take cheer. Now what he talks basically, he says this to Fowler, take cheer. Take cheer का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, इट्स अ फ्रेज, इट मीन्स कि अब तुम खुश हो जाओ। टेक चीयर, खुश हो जाओ, माय यंग फ्रेंड, मेरे अच्छे दोस्त, young dost, presently you will see a paper. Now students, this possible is creating a bit sensation there, a bit suspense, कि भी presently you will see a paper, a quite important paper. अब उसको वो बताता है, now suspense और thrill starts from here, जब वो उसको कुछ बातें बतानी शुरू करता है कि दरवाजे पर खड़े खड़े वो बात कर रहे हैं कि अब तुम जो है ना कुछ पेपर देखने वाले हो जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू आर गोइंग टू सी द पेपर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो बताता है फॉर विच, जिसके लिए सेवरल मेन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स, कि काफी लोगों ने और वुमेन, औरतों ने जो है अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को जो है डेंजर में डाला है, रिस्क में डाला है, देयर लाइव्स। कम टू मी, मेरे साथ आओ, वो उसको बोलता है कि अब मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं और बताता हूं। Someday soon that paper may well affect the course of history. Now he is telling about that paper's importance to Fowler, कि भाई someday soon, कुछ दिनों में जो है ये जो पेपर तुम देखने वाले हो, जो मेरे पास आने वाले हैं, ये हिस्टोरिकल होने वाला है बेसिकली। इट्स गोइंग टू बी हिस्ट्री, कि जब हम फ्यूचर में जाएंगे सो इट विल बिकम द हिस्ट्री, कि आज की जो बातें हम कर रहे हैं और आज की जो ये पेपर्स हैं, this will create historical moments. In that thought is drama, is there not? ये sorry students, in that thought, इस विचार से जो है वो एक थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करता है, सस्पेंस क्रिएट करता है टू दी फाउलर द राइटर, और उसी से क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर लेता है कि व्हाट इज इट राइट और नॉट, कि भाई ये सही है या फिर गलत है बेसिकली। अल्टीमेटली ऑसिबल इज ट्राइंग टू convince him कि भाई you are going to get something suspenseful or something thrill. Ultimately he is talking to him. As he spoke, Osibel closed the door. और जैसे ही Osibel ने ये सारी बातें उसको बोली, और वो जो है पीछे से फिर डोर को क्लोज कर देता है ये बातें करते करते। Then he switched on the light. और वो जो है फिर लाइट को स्विच ऑन करता है। Switched on the light of the room. जिस रूम में आए हैं वो होटल के 6th फ्लोर पर, उसकी लाइट्स को ऑन करता है। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही वो कहता है लाइट ऑन होती है, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल। और फॉलर जो है फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल मींस वो कहता है ही लुक्स एट द रोमांच बेसिकली, थ्रिल बेसिकली, और एडवेंचर, a type of excitement, authentic thrill was there of the day,
उस दिन की ये पहली उसकी एडवेंचर एक्साइटमेंट थ्रिल थी बेसिकली। अब वो क्या थी? फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम। अब अक्रॉस द रूम मीन्स उस रूम के आधे हिस्से के दूसरी तरफ, अक्रॉस द रूम, a small automatic pistol in his hand stood a man। एक आदमी खड़ा हुआ है जिसके हाथ में ऑटोमेटिक पिस्टल है और वो खड़ा हुआ है उनकी तरफ पॉइंट आउट किए। ऑसिबल blinked a few times। blinked means एकदम से ऑसिबल जो है छपकता है कि व्हाट इज दिस, एकदम से उसकी तरफ झपकता है, ब्लिंक करता है अपनी आईज को, a few times, कुछ बार, कई बार। Max he wheezed। wheezed means to speak breathily, noisily and heavily। जब कोई जो है ना नाक में बोलता है और थोड़ा जोर लगा करके बोलता है, wheezed बेसिकली नोज में बोलता है। मैक्स ये बोलकर he wheezed, you gave me quite a start। quite a start, students, it's a phrase you can see, means startled, surprised, कि तुमने मुझे चौंका दिया है, मुझे सरप्राइज कर दिया। You gave me quite a start। I thought you were in Berlin। मैंने सोचा कि तुम तो बर्लिन में थे। What are you doing here in my room? तुम मेरे रूम में यहाँ पर क्या कर रहे हो? What are you doing here in my room? क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? This is the first point we completed। Now let's go to the next point। Read and find out। कि हमें क्या find out करना है, ऑथर हमसे क्या चाहता है। How has Max got in? एक तो मैक्स जो है अंदर कैसे आया घर में, एंड हाउ डज ऑसिबल से ही गॉट इन, और किस तरह से ऑसिबल कहता है कि वो कैसे अंदर आया। सो डियर स्टूडेंट्स, वी नीड टू सी द 2 पॉइंट्स बेसिकली। You will be given time to have a cross questioning if you want to ask any point. Otherwise, that's not that much difficult. The difficult words are on the way. While reading, I'm telling you simultaneously. Keep focusing and underlining the words. It might get a very different explanation also. So let's go ahead. Max was slender. Now we are going to see the explanation of the man who was standing, named Max, was slender, a little less than tall। ना तो वो ज्यादा लंबा है, टोल से थोड़ा सा कम हाइट है, लिटिल लेस थोड़ी सी कम, और स्लेंडर मीन्स कि दुबला पतला है, वीक, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox। crafty countenance of a fox। So what we find here, students, what he talks about the features of that man, crafty means होता है students tricky, pointed countenance of a fox, और dishonest जिसको हम बोल सकते हैं crafty को tricky और dishonest, and pointed countenance means disappointing way में जो है, एक means लोमड़ी की तरह जो है वो उसके ऊपर अपनी पिस्टल को पॉइंट आउट किए हुए है। countenance of a fox, we can see countenance of a fox means वो ये कहता है कि annoyed और disapproving means उनकी तरफ देखते हुए, you can see in the picture also किस तरह से उसने अपनी पिस्टल को उनकी तरफ पॉइंट आउट किया हुआ है, बिल्कुल चालाक लोमड़ी की तरह। countenance of a fox। there was about him, aside from the gun, nothing especially menacing। अब हमारा ऑथर बताता है कि उसके पास उसकी पर्सनैलिटी में या कुछ और चीजें कुछ भी डिफरेंट नहीं था, नथिंग कुछ भी नहीं था, स्पेशली मेंसिंग गन के अलावा, यानी कि गन के अलावा मेंसिंग मीन्स होता है थ्रेटनिंग और डेंजरस। अंडरलाइन कर सकते हो, यू कैन अंडरलाइन दिस पॉइंट, स्पेशली मेंसिंग मीन्स डेंजरस और थ्रेटनिंग। इस गन के अलावा उसके पास कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ मेंसिंग हो सकता है और कुछ थ्रेटनिंग हो सकता है। नाउ यू सी द रिपोर्ट ही murmured means speak up, बोलता है धीरे से, give me the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles। I thought I would take it from you, it will be safer in my hands than in yours। नाउ मैक्स उसको बोलता है कि भाई जो रिपोर्ट आज तुम्हें मिलने वाली है, तुम्हारे पास आने वाली है, being brought to you tonight, आज तुम्हारे पास आने वाली है, concerning some new missiles,
जिसका जो कंसर्न है वो एक नई मिसाइल को लेकर के है, न्यू मिसाइल्स जो बन रही है कहीं पर, उसकी ये रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंट्स हैं बेसिकली। आई थॉट, अब वो मिस मैक्स कहता है कि मुझे लगा, मैंने सोचा कि भाई आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, कि मैं ये तुमसे ले लूंगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स, ये मेरे हाथ में सेफ होंगे, देन इन योर्स, तुम्हारे हाथ के अलावा, तुम्हारे अलावा। वो कहता है कि अगर मैं ये तुमसे ले लेता हूं, so the documents, the report will be safe in my hands than yours. So next, Ausable moved to an armchair and sat heavily. आर्म चेयर की तरफ जाता है और वहां पर जोर से एकदम बैठ जाता है, रिलैक्स्ड, अपने आप को शो करता है, that I'm a bit relaxed, और heavily वहां पर बैठ जाता है। I'm going to raise the devil with the management this time. You can bet on it. Now, what is he doing basically? Now you see, students, it's a phrase basically, raise the devil with. Raise the devil means होता है to make a noisy disturbance. किसी भी मामले को उठा देना, डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए, सिचुएशन को डाइवर्ट करने के लिए, वो सिचुएशन को डाइवर्ट करने के लिए, सिचुएशन को चेंज करने के लिए और डिस्टर्ब करने के लिए कहता है कि भाई आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद, कि भाई मैं एक मुद्दा उठाने वाला हूँ, नॉइस करने वाला हूँ मैनेजमेंट के साथ, दिस टाइम, एंड यू कैन बेट ऑन मी, कि तुम मेरे साथ शर्त लगा सकते हो। किस बात को लेकर के? ही सैड ग्रीमिली। ग्रीमिली मीन्स होता है स्टूडेंट्स सीरियसली। Underline this and just you can note down this creamily, seriously, and the phrase raise the devil with the management, यानी कि यहाँ पर raise the devil with, ये हमारा phrase हो गया और इसको लेकर के बोलता है to make a noisy disturbance basically, कि भाई किस तरह से वो इसको उठाने वाला है। This is the second time in a month that somebody has got into my room, कि भाई ये दूसरी बार है, इट इज सेकेंड टाइम बेसिकली, कि कोई मेरे कमरे में, मेरे रूम में घुस आया है, गोट इनटू, आ गया है, घुस आया है, थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ द बैल्कनी। न्यूसेंस मींस बेसिकली वो कहता है परेशान कर देने वाली चीज, द वन which disturbs or creates the problem or bothers, the one nuisance of a balcony. He talks about a balcony, एक balcony की बात करता है। Fowler's eyes, Fowler जो था राइटर, उसकी आंखें जो है, उसकी आईज वेंट टू द सिंगल विंडो। रूम में जो है एक ही सिंगल विंडो थी और उसकी तरफ जो है फाउलर की नजर जो है एकदम उस विंडो की तरफ जाती है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, और ये जो विंडो थी बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सिंपल विंडो थी, ऑर्डिनरी। अगेंस्ट व्हिच नाउ द लाइट वाज प्रेसिंग बैल्कनी ब्लैकली बेसिकली। अब वो कहता है कि उसके अगेंस्ट अगर वो अज्यूम करता है, देखता है, क्योंकि इट वॉज द नाइट और अंधेरा जो है बाहर से अंदर की तरफ दिख रहा है, मीन्स द वन वॉज नॉट एबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड, सो इट वॉज ऑल डार्क आउटसाइड। ब्लैकली मीन्स वो कहता है कालापन था बाहर की तरफ, आउटसाइड द विंडो। बैल्कनी, Max said with a rising inflection. Rising inflection means उत्सुकता के साथ, मॉड्यूलेशन इन अ वॉइस, अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट, चेंज करते हुए बोलता है बैल्कनी। मैक्स सेड, मैक्स ने बात बोली विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, नो नो नो, वो कहते हैं अ पास की। स्टूडेंट्स पास की को अंडरलाइन करेंगे। पास की मीन्स मास्टर की, जो कि मास्टर चाबी होती है होटल के अंदर, मास्टर की होती है, विच कैन बी अप्लाइड टू एवरी रूम्स लॉक टू अनलॉक इट, उसके लॉक को अनलॉक करने के लिए मास्टर की बात कर रहे हैं। आई डिड नॉट नो अबाउट द बैल्कनी, मैक्स कहता है कि मुझे बैल्कनी के बारे में कुछ नहीं पता था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, कि भाई मुझे अगर इस बैल्कनी के बारे में पता होता, इफ आई हैड नोन, सो ये मेरा काफी ट्रबल, काफी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देती, फिनिश कर देती। माइट हैव सेव्ड, मेरा समय बचा देती बेसिकली। सो here what we understand, students, that Max was not familiar about the balcony of the Ausable's room. It's not my balcony, Ausable said with extreme irritation. और extreme irritation के साथ, गुस्से के साथ Ausable कहता है कि ये मेरी बालकनी नहीं है, it belongs to the next apartment,
ये नेक्स्ट अपार्टमेंट से बिलोंग करती है, नेक्स्ट अपार्टमेंट जो है उससे बिलोंग करती है. He glanced explanatory at Fowler. और वो फॉलर की तरफ, एक्सप्लेनेटरी मीन्स एक्सप्लेन करते हुए, बताते हुए उसकी तरफ देखता है, फॉलर की तरफ. द वन हु वाज टू नोट डाउन द थिंग्स अबाउट द सीक्रेट एजेंट. एक्सप्लेनेटरी मीन्स एक्सप्लेन करते हुए उसकी तरफ देखता है. यू सी, तुम देखो, ही सेड, वो कहता है, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट. ये कमरा जो है एक बड़े से रूम का पार्ट हुआ करता था, हिस्सा हुआ करता था. एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर. और अगला जो कमरा है उस डोर से, पॉइंट आउट करते हुए डोर की तरफ कहता है, उस डोर से आगे जाते हुए, यूज्ड टू बी द लिविंग रूम. और वहां पर जो है एक लिविंग रूम हुआ करता था. इट हैड द बैल्कनी, जिसकी की वो बैल्कनी थी उस समय, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ. और जो वहां से चलते हुए, बढ़ते हुए, वो कहता है मेरे कमरे तक आती है. मीन्स द balcony starts from the next apartment and comes to the window of the Ossible's room. Ossible's room तक जो है उसकी विंडो, बैल्कनी आ रही है, तो वो उसके बारे में बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है. You can get onto it from the empty room, 2 other doors down. अब वो एक्सप्लेन कर रहा है. Now he's explaining, you can get onto it from the empty room. खाली रूम से तुम जो है, वहां पर जो खाली रूम है, वहां से तुम 2 रूम स्ट्रेट चलते हो. If you go then down, when you come the down, 2 doors basically, and somebody did last month. और इसी तरह से किसी ने लास्ट मंथ भी मेरे साथ ऐसा ही किया. Somebody did last month. The management promised to block it off. और मैनेजमेंट ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो इस बैल्कनी को जो है ब्लॉक कर देंगे. They will block this balcony and nobody would be able to come to my room. यानी कि लास्ट मंथ भी कोई वहां से जो है उस बैल्कनी से, उस एम्प्टी रूम से, 2 डोर से होते हुए जो है पॉसिबल के रूम में आया था और उसने कंप्लेंट की थी. और बैल्कनी और मैनेजमेंट ने उसको प्रॉमिस किया था दैट दे वुड ब्लॉक इट, बट दे हैवंट. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है. दे हैवंट. अल्टीमेटली स्टूडेंट्स, he was creating a chaos at the situation basically, and making things happen, or trying to make him understand about the balcony's situation. Max glanced at Fowler. Max जो है Fowler की तरफ देखता है, उसकी तरफ देख करके कहता है, who was standing stiffly not far. जो बिल्कुल एकदम चुपचाप जो है वहां पे सीधा, स्टाइफली मीन्स वो बिल्कुल सीधा तने हुए खड़ा हुआ था. द फॉलोअर जो वहां पर था बिल्कुल चुपचाप सीधा खड़ा हुआ था, स्टैंडिंग. फार फ्रॉम ऑसिबल. फार फ्रॉम ऑसिबल, ऑसिबल से थोड़ी दूरी पर, ऑसिबल से थोड़ी सी दूरी पर खड़ा हुआ था. बता दिया. नाउ यू सी, he was just standing stiffly, means सीधा चुपचाप खड़ा हुआ था वहां पर जो फाउलर था, क्योंकि वो सिनेरियो को देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था. he was looking at the scenario, what was happening, the conversation between both the secret agents, like see Possible or the Max, और थोड़ी सी दूरी पर था वो Possible से. and waved the gun with a commanding gesture. waved means अपने हाथ को हिलाता है जिसमें उसके पास गन है, और कमांडिंग मीन्स उसको कमांड कर रहा है जेस्चर्स के साथ, मतलब हाथ को हिलाते हुए, प्लीज सिट डाउन, कृपया करके बैठ जाइए. ही सेड, ये बात मैक्स ने फाउलर को बोली. वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर. हमारे पास अभी भी जो है आधा घंटा है. आई थिंक, मुझे लगता है. ये बात मैक्स जो है फाउलर को बोलता है कि हमारे पास अभी आधा घंटा है, आप जो है बैठ सकते हो. नाउ सी स्टूडेंट्स, some of the students were raising hands. Now we are going to unlock you people. Any one of you wants to ask any question, I told you people to note down the things if you want to ask. But one thing is very important, that you are listening carefully and the things are going to take place in a systematic way. So the students, if any one of you wants to ask any question related to this,
I hope that we are doing well so that you people can understand the things properly. If any one of you wants to ask any question, come forward and ask, because we are running short of time. We have hardly 4 or 5 minutes to just continue. Then automatically it will be cut. The meeting will be over. Any one of you, a few students raised hand. A few students raised hand. They wanted to ask something. This chapter we are reading, students, we are learning how the secret agents work basically, what's their life, and basically how they live, how they apply the tricks in their life to get rid of a particular tricky situation. So that's what we are learning the things, and somewhat or somewhere these apply to us also, to our life also. So students, any one of you wants to ask anything can come forward to have a bit questioning, any scenario you want to talk that might be a bit disturbing to you.